I was brought up in a I was brought up in an orphanage, मैं अनाथालय में पला बड़ा and from childhood we grew together with different children. और बचपने से अलग अलग बच्चों के बीच में हम बढ़ते गए। There was one old man who was staying with us in the orphanage. और उस अनाथालय में एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ रहते थे। Whenever I have a question, I used to go and ask him the question, and he used to answer me from the Bible very, very politely, respectfully. और जब भी मुझे कोई प्रश्न होता था, मैं उनके पास जाता था और उनसे प्रश्न पूछता था, और वो बाइबल में से मुझसे बहुत ही सौम्य तरीके से उसका उत्तर दिया करते थे। Once I asked him, Sir, if I follow Jesus and then if I follow the commandments of Jesus and if I become disciple of Jesus, what is the benefit? मैंने उनसे ये सवाल किया, यदि मैं यीशु के पीछे चलना शुरू करूं, यदि मैं यीशु का चेला बन जाऊं, यदि मैं यीशु की सेवा करना शुरू करूं, तो मेरे जीवन में मुझे क्या लाभ मिलेगा? Then he answered me from the book of Revelation, 2nd chapter and 3rd chapter, where the rewards for the overcomers are listed. तो उन्होंने मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और अध्याय 3 से मुझे उत्तर देते हुए कहा कि यहाँ पे जय पाने वालों के विषय में लिखा हुआ है। Last week we have seen and meditated from the 1st chapter of book of Revelation. और पिछले सप्ताह हमने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंतिम पैराग्राफ में से सीखा था। And then it was a real blessing and I was blessed by that meditation. और सचमुच में एक आशीष का कारण हुआ और विशेष तरह से मैं उससे आशीषित हुआ। Last week we have also seen from 1st chapter verse 19 the divisions of the book of Revelation. और पिछले सप्ताह में हमने पहले अध्याय के 19 वचन में हमने प्रकाशित वाक्य के 2 भागों के विषय में देखा। It says in verse 19, write the things which thou hast seen. और ऐसा लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इससे बाद होने वाली है, सबको लिख ले। So there are 3 parts in this verse. इस वचन में 3 भाग है। Number 1 is write the things which thou hast seen. That means John has seen the vision of Jesus in 1st chapter, and this part speaks about 1st chapter. और जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जो बातें तूने देखी, अर्थात यूहन्ना ने दर्शन में जिन बातों को देखा उसके विषय में पहले अध्याय में देखने को मिलता है। उसे लिख ले। Division is in the same verse. It says, and the things which are. और फिर आगे लिखा है, जो बातें हो रही है। That means that's about the present tense, and that speaks about 2nd and 3rd chapter of the book of Revelation. और वो है वर्तमान में हो रही बातों के विषय में लिखा हुआ है, और वो है 2रा और 3रा अध्याय। Again we will see the 3rd part, and the things which shall be hereafter. और जो बातें इसके बाद होने वाली है। This speaks about future. So from 4th chapter to 22nd chapter of the book of Revelation, the 3rd part comes, and 3 different parts of the book of Revelation. और अध्याय 4 से लेके
अध्याय 22 तक तीसरा भाग की शुरुआत होती है और इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य की ये पुस्तक 3 भागों में बांटी गई है। Last week we had given a questionnaire based on the book of Revelation, first chapter. और पिछले सप्ताह में हमने कुछ प्रश्नावली आपको यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के आधार पर दिया था। Some of you answered it very well, कुछ लोगों ने अच्छी तरीके से उसका उत्तर दिया, but they are not based on first chapter of the book of Revelation. लेकिन वह प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के आधार पर नहीं थे। So try to answer from the book of Revelation, and the main outline is from the book of Revelation only. और उत्तर जो होना चाहिए वो प्रकाशित वाक्य में से ही होना चाहिए। Now, after seeing the three parts of the book of Revelation, और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखते हैं, we have finished already first part, that is first chapter. और हमने जो है पहले ही पहले अध्याय के पहले अध्याय को हमने इस समय में पूरा किया है। And then now we are entering into the second part of the book of Revelation, that is chapter 2 to 3. और अभी हम दूसरे भाग को इस समय में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है दूसरा और तीसरा अध्याय। In this level, we are not going into the detailed study about second and third chapter. और इस स्टेज पे हम लोग दूसरे और तीसरे अध्याय की जो गहरी शिक्षा है उसमें नहीं जाएंगे। Maybe next level, when we take up 1 year course in theology, that time we will go into little more detail. और इसमें हम अपने अध्याय में जाएंगे, थोड़ी बातों को हम इसमें सीखेंगे। Now we will see 7 blessings of the overcomer. हम यहाँ पे 7 आशीष से जो जय पाने वाले हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। Let's go to second chapter of the book of Revelation. आइए हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय की ओर जाते हैं। And let us read verse 7. और इस समय में हम 7वां वचन पढ़ते हैं। It says, "He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Whenever Jesus said, this was the real word which he used after each parable when Jesus spoke. और जब जब यीशु मसीह ने एक एक दृष्टांत को कहा, उसके अंत में उसने इस बात को कहा कि जिसके कान हो वह सुन ले। That was in the Gospels, 4 Gospels. जो हमें 4 सुसमाचार में देखने को मिलता है। But in the book of Revelation, we also see the same emphasis on hearing the word of God. और हम उसी बात को परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। He says, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches." और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। What does it say? वो क्या कह रहा है? There is no compulsion, there is no force that you should hear or listen, but there is definitely freedom in listening and then freedom in choosing. यहाँ पे सुनने और करने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे एक स्वतंत्रता दिया गया है सीखने के लिए और चुनाव करने के लिए। No, that is the reason I like Jesus. और इसी कारण मुझे यीशु पसंद है। Jesus gives you full freedom to choose or to reject his words and to follow his word.
और यीशु ने हमें चुनाव दिया है जिससे हम उसके वचन को स्वीकार कर सकते हैं या उसका तिरस्कार कर सकते हैं या उसके वचन का पालन कर सकते हैं। Exactly. Thank you. Here we see that he that had a ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. और जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Who is speaking? The Spirit is speaking. The Holy Spirit is coming with all clarity and authority and speaking to us. तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा बोल रहा है। पवित्र आत्मा अधिकार के साथ और एक स्पष्ट रीति से हमसे इस विषय में बात कर रहा है। That is the reason we call the Bible as the Word of God. It is not man's word, it is God's word. इसलिए हम बाइबल को परमेश्वर का वचन कहते हैं और ये मनुष्य का वचन नहीं है। Who is man here, or who is the servant of God who is speaking to you? He just resound of God has spoken already. और यहाँ पे जो परमेश्वर का दास है वो कौन है? ये वो है कि वो परमेश्वर की आवाज को जिसको परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है उन बातों को वो बोल रहा है। So here we see, if you have ear, you can hear now. यदि तुम्हारे पास कान है तो तुम अभी उस बात को सुन लो। Now next line it says, to him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. और आगे की लाइन में इस प्रकार लिखा है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। When God created beings, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, then he created human beings and kept them in Garden of Eden. परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाकर उसको अदन के बाग में रखा। In Garden of Eden, we see about two wonderful trees and which are useful for man. और हम उस बगीचे में दो सुंदर से ऐसे झाड़ों को देखते हैं जो मनुष्य के लाभ के लिए। There were many trees and God gave them to eat from all the trees and maximum was there. और वहां पे बहुत से ऐसे पेड़ थे जिन पेड़ों को परमेश्वर ने मनुष्य के खाने के लिए दिया था। And only limited restriction was there, that is not to touch the fruit of the knowledge of good and evil. लेकिन वहां पे एक ऐसी हिदायत या आज्ञा दी गई थी कि जो भले और बुरे के वृक्ष का फल है उसको ना छूना। In maximum freedom, only minimum test man failed. और यहाँ पे देखते हैं कि अधिक प्रमाण में स्वतंत्रता, लेकिन थोड़े प्रमाण में हिदायत देने पर भी मनुष्य उसमें फेल हो गया, नाकाम हो गया। Man went and plucked the fruits of the knowledge of and evil. मनुष्य ने क्या किया? उस पेड़ को जो भले और बुरे का ज्ञान देता था उस फल को तोड़ लिया। And then he ate. But he did not touch or even go near to the tree of life and then eat the fruit of the tree of life. लेकिन वह उस जीवन के वृक्ष के पास नहीं गया और जाके उसके फल को नहीं खाया। And God kicked them out of Eden because God don't want man to live in sin forever. If he eats the fruit of life's fruit, then he will not die. और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अदन के बाग से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन लोगों ने उस
जीवन के फल को खाया नहीं था। यदि वह उस जीवन के फल को खा लेते तो मनुष्य कभी भी नहीं मरता और वह हमेशा के लिए पाप में जिंदा रहता। But here लेकिन यहाँ पर we see that God is giving back to eat of the fruit or tree of life, fruit of tree of life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जीवन के पेड़ में से फल खाने को दे रहा है। The man lost God's perfect will, and then he could not eat the fruit of the tree of life. क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से लुप्त हो गया, वह हट गया, इस कारण वह जीवन के पेड़ के फल में से खाने नहीं पाया। Now, when you are deprived of something of eatables, then your tongue and stomach also will be longing for it. और जो खाने की चीजें है जो आप नहीं खा सकते, उसे खाने के लिए आपकी जीभ जो है कई बार ललचाएगी। Some people like sweet very much, but they're deprived of, or they will not be given. Maybe even at the look of the sweet, they will be longing for it so much terrible. जैसे कुछ लोगों को मीठा खाना पसंद है, लेकिन उनके लिए कुछ हिदायतें दी गई है, इसके कारण उनको थोड़ा सा भी मीठा नहीं दिया जा सकता, तो उसकी लालसा उनमें अधिक से अधिक बढ़ जाती है। Well, I'm saying, when a man who lost the eatable or the fruit of the tree of life may be longing for it, and he is getting only in the book of Revelation. मेरे प्रियो, जिस जीवन के पेड़ के फल को खाने की मनुष्य की जो इच्छा थी, जिसके प्रति उसमें एक ललक या लालसा थी, उस फल को केवल हम प्रकाशित वाक्य के इस पुस्तक में देख सकते हैं। When we go to heaven, definitely the first thing which you and I will be given, that is to eat the fruit of tree of life. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो निश्चित ही हमें उस फल को खाने को मिलेगा जिसकी अब तक हम लालसा कर रहे हैं, वो है जीवन के पेड़ का फल। People try to fill this desire by doing many things, and then they want to satisfy, but they are not satisfied. Only in paradise of God, when we reach there, we will be satisfied with the reality and real eating of God's grace and God's provision. और लोग इस दुनिया में कई चीजों के द्वारा खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वह किसी भी बात से इस संसार में रहकर संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन निश्चित ही जब वो परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तब वहां पे परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके वो हमेशा के लिए संतुष्ट होंगे। So something is eatable, a fruit, and very tasty, and then the fruit which gives you life and me life, that is waiting for us in heaven. और वो फल जो आपको और मुझको जीवन देता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है, वो फल आपके और मेरे लिए स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रहा है। Okay, now let's go to the second blessing of the overcomer. और हम दूसरी आशीष जय पाने वाले के लिए है, उसकी ओर जाते हैं। If you overcome in this world all the temptations and all the wiles of demons, और जब आप संसार की उन अभिलाषाओं और शैतान की युक्तियों के ऊपर जब जय प्राप्त करते हो, second blessing is in the book of Revelation, 2nd chapter, verse 11. और दूसरी आशीष प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और उसके 11 वचन में It says, "If hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches."
जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। He that overcometh shall not be hurt of the second death. जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। That is wonderful. ये बहुत ही अद्भुत है। And the first thing is you have something to eat, and through that eating you are living forever, eternally. और पहली आशीष है कि कुछ खाने की वस्तु है, उसको खाने के द्वारा अनंत काल तक आप जिंदा रहेंगे। And then second blessing is you are not enter into second death. और दूसरी आशीष है कि आप दूसरी मृत्यु में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। According to Bible, we have only death in the scripture. और बाइबल के अनुसार केवल दो मृत्यु के विषय में बाइबल कहती है। Two births and two deaths. दो जन्म और दो मृत्यु। If you are born twice, you will die. यदि दो बार आपका जन्म हुआ तो दो बार आप मरेंगे भी। If you are born only once, then you will die twice. यदि आप एक बार जन्मे तो भी आप दो बार मरेंगे। So here, second death. What is second death? तो यहाँ पे दूसरी मृत्यु क्या है? You will not be hurt by the second death. What does it mean? आपने दूसरी मृत्यु के विषय में नहीं सुना होगा। इसका अर्थ क्या है? Second death will fear to come near to you if you are walking in the way of the. यदि आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं तो दूसरी मृत्यु आपके पास आने से भी डरेगी। If you read the original, death means separation. यदि आप मूल भाषा में पढ़ेंगे तो मृत्यु का अर्थ होता है अलगाव। First death is separating our soul and spirit from the body. पहली मृत्यु में हमारी आत्मा और हमारा प्राण शरीर को छोड़कर जाता है। For everyone. वो हर एक के लिए आवश्यक है। Second death is only for those who committed sin and live in sin and they have not turned unto God. और दूसरी मृत्यु उनके लिए है जो पाप में जिए और पाप करते करते मर गए और उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, उनके लिए दूसरी मृत्यु In है। 1 Thessalonians 4th chapter verse 16 we read about rapture, how the people who are in the Lord or who are dead in the Lord, they will be risen when the Lord comes to the midday. और पहला थिस्सलुनीयों उसके 4:16 में लिखा हुआ है, जो मसीह में पहले मर गए हैं वो उस गुप्त आगमन में उठाए जाएंगे। Here, second death means separation, totally separation from God and separating ourselves that we may go to hell. और ये जो दूसरी मृत्यु का अर्थ ये है कि हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना और सीधे नरक की मृत्यु में जाना। If you are a overcomer, then you will definitely taste the second. You will not taste the second death. यदि आप जय पाने वाले हैं तो दूसरी मृत्यु को आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे। Let us go to third blessing of a overcomer. अब हम तीसरी आशीष जय पाने वाले के विषय में देखते हैं। Written in second chapter of the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में verse 17. और उसका 17 वचन of the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 17। It says, he that hath an ear, let him hear that what the Spirit saith unto the churches.
जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता To है। him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। Beloved, we heard about manna, but we never tasted manna. मेरे प्रियो, हमने मन्ना के विषय में सुना जरूर है, लेकिन हमें मन्ना को चखा But नहीं है। God is saying, he that overcometh and he who walks in the way of the Lord, I will give to eat of the hidden manna. परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि जो जय पाए, जिन्होंने उस गुप्त मन्ना को चखा नहीं है, मैं उन्हें उस गुप्त मन्ना में से And this खिलाऊंगा। verse continues saying, and will give him a white stone. और आगे कहते हुए वचन में लिखा हुआ है, और उसे एक श्वेत पत्थर भी See, दूंगा। these stones are very precious these days. ये जो पत्थर है इन दिनों में काफी कीमती पत्थर है। Some people put stones in their ring. कुछ लोग जो है अपने उंगलियों में पत्थर Some पहनते people हैं, put it in their necks. कुछ लोग अपने गले में पत्थर And पहनते हैं। then here, this stone is not ordinary stone, it is a white stone. White stone has 7 different colors which glitters. और यहाँ पे जो पत्थर है वह श्वेत पत्थर है, और उसमें 7 प्रकार की अलग अलग चमक है। So when you overcome this world, God gives you hidden manna to eat. जब आप जय पाते हैं तो परमेश्वर आपको गुप्त मन्ना खाने को And देगा, then he gives you white stone which will glitter you and make you colorful for his glory. और परमेश्वर आपको एक श्वेत पत्थर देगा जो चमकता रहेगा, और आप परमेश्वर की महिमा के लिए चमकते रहेंगे। Not only that, that verse continues saying, in the stone a new name written. और आगे वचन कहता है, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। A new name. Do you want to know that name? क्या आप उस नाम को जानना चाहते हो, उस नए नाम को? Come, let us go together to paradise to know the name. We will not know unless we go and receive that white stone. तो चलिए हम उस स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि जब तक हम वहां पे ना पहुंचे तब तक हम उस श्वेत पत्थर को नहीं जान पाएंगे। And then it says, a new name written which no man knoweth, saving he that receiveth it. और ऐसा लिखा हुआ है कि उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। You're special in God's hands. ये परमेश्वर के हाथ में कीमती पत्थर जैसे हैं। You are special and your life is special and your life is precious, and God gives you a new name, a special name. And what a wonderful honor which God gives to his children. आप कीमती हैं, आप परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर के बच्चे के नाते कीमती हैं, और परमेश्वर आपको एक नाम, एक विशेष नाम देता है। Now we have such thing as he will give you to eat the tree of life, or the fruit of the tree of life. और पहले आशीष हमने देखा कि वो आपको जीवन के पेड़ में से फल खाने को देगा। Second, we have seen that you will not be hurt by the second death. और दूसरा हमने सीखा कि दूसरी मृत्यु से हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। Thirdly, we have seen that we will be given hidden manna, and will give him a white stone, and the stone a new name written on that stone, which will be known only by the person who receives. और तीसरी बात हमने देखा कि वो हमें गुप्त मन्ना में से देगा और एक श्वेत पत्थर भी देगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे पाने वाले के सिवा और कोई ना उस नाम को जान पाएगा।
So we should be excited, and then when we enter into the gates of heaven, we will be having a new excitement to see the new stone and then new name and a special name. और हमें बहुत प्रोत्साहित होना चाहिए कि जब हम स्वर्ग के द्वार पर खड़े खड़े ही होंगे तो हम प्रवेश करने से पहले हमें वो पेड़ में से खिलाया जाएगा और हमें गुप्त मन्ना दिया जाएगा और हमें एक श्वेत पत्थर दिया जाएगा और उस पत्थर पर हमारा नाम लिखा हुआ होगा। You should be bubbling with joy. आपने बिल्कुल आनंद से बिल्कुल कूदते फानते रहना है। You know, when I heard about all this, my ear was like a trumpet blown and rejoicing and glorifying, jumping and dancing and glorifying the name of the Lord. और जब मैंने इस बात को सुना मेरे प्रियो, तो मैं अपने कानों से सुनने के द्वारा मैं अपने मन में उछल पड़ा, मैं कूदने लगा, मैं प्रभु के लिए नाचने लगा। 40 years back when I was in the hostel, this was taught by an old man who really brought out the real living life into my life, and the life, Christian life, has become so much of excitement, joyous and wonderful. और 40 साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस बात को परमेश्वर के वचन से इस गहरी बात को मुझे बताया और उस जीवन के बारे में, क्योंकि मसीह जीवन एक बहुत ही आनंदपूर्ण, बहुत ही प्रोत्साहित पूर्ण ऐसा जीवन है। So three things we have seen, and fourth thing is again in the second chapter of book of Revelation. और जैसे तीन बातें अभी हमने प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में देखा, एक और चौथी बात हमें प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलती है। Second chapter verse 26. और अध्याय 2 उसका 26 वचन। It says, and he that overcometh and keep my works unto the end, to him will I give power over the nations. जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। Beloved, wonderful, he is giving power. बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो, वो हमें अधिकार देगा। In this world we live like a powerless. इस संसार में हम ऐसे हम बिना अधिकार के जी रहे हैं। You know, whenever I go to market, people easily deceive me. I am deceived anywhere and everywhere, and I feel very bad after being deceived. और जब मैं मार्केट बाजार में जाता हूँ तो लोग मुझे धोखा देते हैं और फिर धोखा खाने के बाद मैं बहुत ही बुरा महसूस करता हूँ। Think about someone pocketing your pocket. कल्पना करें कि किसी ने आपकी जेब मार ली। Once I was getting into the bus and then someone pickpocketed my pocket. और एक बार जब मैं बस में चल रहा था तो किसी ने मेरी जेब मार ली। All the money which I had lost, and now nothing is there. और जो कुछ भी मेरे पास पैसा था वो सब खो गया था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। In the travels now and then, so many times it happens in the buses, in the trains, people deceive and everything is gone. और यात्रा करते समय कई बार लोगों ने मुझे धोखा दिया और कई बार सब कुछ चला गया। When everything is gone, remember how you feel. विचार करें कि जब सब कुछ चला जाता है आप उस समय में कैसा महसूस करते हैं। When everything gone, I will be thinking, if I meet that man, I will hit him, I will do this, I will do that, nothing, all nonsense. Oh, everything is only in the imagination. और जब सब कुछ चला जाता है तब ऐसे विचार आने लगते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को पकड़ना है, उसको मारना है, उसको ऐसा करना है। ये सब कल्पनाएं होती है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। And we live life of people who do not have power. और हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। Here it says, verse 26,
I will give power over the nations. यहाँ पे अध्याय 2 के 26 वचन में वो कहता है कि मैं उनको राष्ट्रों के ऊपर अधिकार दूंगा। Verse 27. 27 वचन, And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers. Then I receive of my Father. और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। What type of power is that? It is to break the people and then overpower them as a potter overpowers the pots. और ये कौन सा अधिकार है? ये वो अधिकार है जो लोगों को चकनाचूर कर दे या उनके ऊपर में अधिक सामर्थ रखे, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। And then verse 28 says, और 28 वचन कहता है, and I will give him the morning star. और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। Have you seen morning star? क्या आपने भोर के तारे को देखा है क्या? No, in my childhood, I used to go and work in the fields to earn some money and then purchase my books. और मेरे बचपन के दिनों में, मेरे जवानी के दिनों में मैं काम किया करता था और उस पैसों से मैं अपनी पुस्तकों को खरीदा करता था। And then we used to sleep in the fields in the open air, and then we used to be there for a month or 2 months while paddy is taken and while the field work is going on. और फिर खेत के बाहर में हम सोया करते थे महीने 2 महीने, और तब तक जब तक कि पुआल जो है ना फसल पूरी तरीके से ना कट जाए। So my daddy and others, they used to go and bring big sticks and big trees, and then they used to make a fire. Whole night there used to be fire because wild animals should not come. So with that, and secondly, it used to be very cold in the fields. So we used to sleep around the fire. और उस समय में मेरे पिताजी और अन्य लोग जो है लकड़ियों को जमा करते थे और अग्नि जलाते थे, क्योंकि उस समय में इतनी ठंड हुआ करती थी कि उस ठंड में सोना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो उस अग्नि के इर्द गिर्द हम लोग सोया करते थे। Because of the severe cold, sometimes we don't get sleep after 3 o'clock. और बहुत अधिक ठंड होने के कारण 3 बजे के पश्चात नींद नहीं होती थी। And then we used to get up and sit around the fire and bonfire, and then my elders used to explain which star is which is the north star, which is the morning star, all that. और उस समय में फिर हम उठ जाते थे और उस अग्नि के चारों ओर बैठे हुए होते थे, और हमारे जो भाई बहन है वो ऊपर आकाश की ओर देखकर जो है उन तारों के विषय में बताते थे कि ये कौन सा तारा है, ये कैसा तारा है, ये भोर का तारा है क्या, इस तरीके से। And then early morning there is a bright morning star, and they used to show me and show this is the bright morning star. और तड़के सुबह जब होती थी तब वो मुझे कहते थे कि वो देखो वो है भोर का तारा। What is this morning? It is brighter than all other stars. तो ये भोर का तारा है क्या? ये बाकी सभी तारों से कहीं उज्जवल है। Here Bible says the Lord is going to give you that bright morning star. यहाँ पे बाइबल कहती है कि उस प्रकार का भोर का तारा परमेश्वर तुम्हें देगा।
how much you will be shining, how much you will be rejoicing by seeing the brightness of that star. आप कितने अधिक उससे प्रकाशित होंगे, कितने अधिक उसको देखकर आप आनंदित होंगे उस भोर के तारे को देखने के द्वारा। And we rejoice and we have more joy and more peace when we are with the Lord, and we have depths of joy and we cannot measure and comprehend them. जब हम समय में प्रभु के साथ होंगे, हम इतने आनंदित होंगे, इतना प्रभु में आनंदित करेंगे कि जिस आनंद को हम माप भी नहीं सकते, इतना आनंदित हम वहां होंगे। And then our limited mind cannot understand such a great brightness and such a great joy which God is going to give when we go to paradise. और जब हम स्वर्गलोक में होंगे, उस समय में उस प्रकाश को हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतना प्रकाशित होगा, इतना उज्जवल होगा। And we have seen 4 blessings or 4 rewards to the overcomer in 2nd chapter, and then 3rd chapter we will go to see the 5th reward. और अभी तक हमने दूसरे अध्याय में 3 आशीषें या 3 ऐसे जय को 3 ऐसे प्रतिफलों को देखा। अब हम चौथे आशीष को हम तीसरे अध्याय में देखने जा रहे हैं। Now let's go to the 3rd chapter verse 5. और तीसरे अध्याय के 5वें वचन को हम देखते हैं। It says, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। Definitely there is tribulation in this world. निश्चित ही इस संसार में क्लेश है, There are problems, समस्याएं है, परेशानी है, there are uncertainties. और कुछ ऐसी बातें हैं। You see, we received 13,000 rupees for 5 months. और 5 महीने का हमें इलेक्ट्रिक का बिल 15,000 आया है, 13,000 आया है। And then we were wondering how to pay it. और हम सोच में पड़ गए कि अब इसको किस तरीके से चुकाना है। So the financial uncertainty haunts us. और आर्थिक परिस्थिति इस प्रकार की आती है कि हमारे पास उसका कुछ उत्तर नहीं होता। Sometimes we suddenly fall sick, or some of us will fall sick, and medical bill goes high. Who will pay that? Where from that comes? So uncertainties at every juncture in the life comes. और अचानक बीमार पड़ जाते हैं, और घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, और उस समय में मेडिकल के बिल्स तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार की अचानक आने वाली आपदाएं अचानक ही आ पड़ती है, और इस समय में कौन उसको समझे, ये कहना मुश्किल है। You know, our ashram children are there. Suddenly in the night they will start, stomach ache, and then there will be fever. So we have to rush to doctor at any time. और हमारे आश्रम में जो बच्चे हैं, अचानक उनके पेट में दर्द हो जाता है या कभी बुखार आ जाता है, तो उस रात के समय में हमें तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। So there, but we have to look unto him who will and who will stand with us. और अचानक आने वाली आपदाएं तो हमारे जीवन में हैं, लेकिन हमें देखना है कि उस समय में हम कैसे खड़े रहते हैं।
Here in कौन हमारे साथ खड़ा fifth, है? अब हम 5वें वचन में आए हैं। it says, "He that overcomes, same shall be clothed in white raiment." यहाँ पे लिखा है जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। In this world, everybody may put mud around us, or they will defame our name, they will take our name ill. और हम देखते हैं कि इस दुनिया में हमारे नाम के ऊपर में धब्बा लगाया जाता है, उस पर मिट्टी फेंकी जाती है। But here God says, you will not have even a spot on your garment, it will be white. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे वस्त्र पे एक दाग भी नहीं होगा, तुम्हारा वस्त्र श्वेत वस्त्र होगा। Then God says, I will not blot your name from the book of life. और आगे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना हटाऊंगा या काटूंगा। What is the book of life? क्या है जीवन की पुस्तक? One person, as he accepts Christ, he receives the book of life, and his name will be written in the book of life. जिस क्षण एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है, उसी क्षण उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। Privileged people we are, because our name is registered in heaven. कितने सौभाग्यशाली हम ऐसे लोग हैं कि हमारा नाम स्वर्ग में दर्ज किया गया है। When I accepted Jesus, I was going to a better church where the worship was good, and I used to attend that church. जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, मैं एक अच्छे उत्तम कलीसिया में जाया करता था, वहां पे अच्छी आराधना होती थी। And then my insistence and the elders were saying, "Hey, don't go there, otherwise your name will be removed. You will not be given place for burial." और फिर मेरे जो दूसरे भाई बहन है, वो कहते थे, अरे उस कलीसिया में मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम जो है लोग काट देंगे और तुम्हें दफन करने के लिए कब्र भी नहीं मिलेगी। I told them, मैंने उनसे कहा, my name will be blotted from the earthly book, but my name is written in heaven. मैंने कहा भले ही मेरा नाम इस संसार के कब्र में से काट दिया जाए, लेकिन मेरा नाम स्वर्ग में दर्ज कर दिया गया है। My name is written in the book of life, so I don't dare, I don't fear, and dauntlessly I will go and attend my different church, because I want to grow in spiritual life, I want to grow in scripture, I want to grow in revelation, I want to be in a spiritual. और इसीलिए क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। इसलिए मैं उस कलीसिया में जाऊंगा जिसमें मेरी आत्मिक उन्नति हो, क्योंकि मैं प्रभु के वचन में बढ़ना चाहता हूँ, प्रभु के प्रकाशन में बढ़ना चाहता हूँ, और मैं आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता हूँ। That is the fifth reward as a overcomer you will get. ये तो है पांचवी आशीष जो जय पाता है उसके लिए रखी गई है। Now let's go to sixth reward in third chapter of book of Revelation and verse 12. अब हम छठवें प्रतिफल की आगे बढ़ते हैं, अध्याय 3 और उसके 8वें वचन में। It says third chapter verse 12. तीसरा अध्याय 12वें वचन में It says, "Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of God, my God." जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम
जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। Wonderful. अद्भुत है। It says, him that over make a pillar. Pillar means that cannot be moved, that which cannot be shaken. और यहाँ पे वो कहता है कि जो जयपाल मैं खंबा बनाऊंगा, खंबा जिसे कोई उखाड़ नहीं सकता, जिसे कोई हिला नहीं सकता। Let the floods come, let rains come, let winds come, let anything come, but you are standing there and there alone. चाहे आंधी आए, तूफान आए, लहरें आए, लेकिन आप अकेले वहां पे उस खंबे के समान खड़े रहेंगे। You will not be pillar anywhere, but you are pillar in the presence of God or temple of God. भले आप कहीं भी खंबे ना हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के मंदिर में आप एक खंबा है। Then it says, and I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is now Jerusalem, which cometh down out of the heaven from my God, and I will write upon him my new name. फिर आगे कहता है, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। Beloved, what is this? मेरे प्रियो, ये है क्या? Whenever we go to market, we purchase things, for example, cooker or few things which we need for house, and then we search for brand. Which brand is that? और मेरे प्रियो, जब भी उदाहरण के लिए हम जब भी बाजार में जाते हैं और यदि हमें कुछ खरीदारी करनी होती है, जैसे कुकर खरीदना होता है, तो कुकर खरीदने के लिए हम इस बात को देखते हैं कि ये कुकर किस ब्रांड का है। People look for brand and brand only they will go for. और लोग जो है ब्रांड को देखते हैं और ब्रांड को देखकर उसको खरीदते हैं। Here in 12th verse, God is giving his brand. और 12वें वचन में परमेश्वर वो नाम दे रहा है। He is giving his seal. वह अपनी छाप दे रहा है। And then you belong to God, and God is finalizing you as a fine brand. और वो आपको अपना नाम दे रहा है, और वो अंत में परमेश्वर आपका ब्रांड हो गया है। There is no duplicate brand in God's kingdom, and he gives the fine brand, and you will become the supermost, and in the world you are the best. और परमेश्वर का जो ब्रांड है वो कोई डुप्लीकेट ब्रांड नहीं है, और परमेश्वर आपको वो ब्रांड, वो नाम दे रहा है जो संसार में सबसे उत्तम नाम है, उत्तम ब्रांड है। So who you are? तो आप कौन है? You are of God, and God says, I am the owner of so-and-so person, and your name is in heaven, and your name and your whole life is recorded there. आप परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर आपका है, और परमेश्वर ने आपका नाम स्वर्ग में नाम में दर्ज कर दिया है। Are you happy to hear that? क्या आप आनंदित हैं इस बात को सुनकर? Can we say hallelujah? क्या हम कह सकते हैं हालेलुया? You are not ordinary. People may call you with Hallelujah. nicknames. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। You are God chosen, God branded. आप परमेश्वर के द्वारा नए किए गए हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं। Now the final blessing or final reward. और अब आखिरी प्रतिफल या आखिरी आशीष In 3rd chapter verse 21. अध्याय 3 उसका 21 वचन। It says, to him that overcometh will I grant to sit with me
in my throne, even as I also overcame and sat down with my Father in his throne. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। What a wonderful privilege we have. कितना अद्भुत सौभाग्य। Now you are going to sit in your supreme and supreme authority seat. आप वहां पे बैठने वाले हैं जो उच्च दर्जे का सिंहासन है, वहां पर आप बैठने वाले हैं। So your sitting also is not an ordinary sitting. आपका बैठना भी कोई साधारण बैठना नहीं होगा। Your sitting is recognized by angels. Your sitting is recognized by the heavenly beings, and they all worship and they all applaud for your sitting. और आपका बैठना कोई साधारण नहीं होगा। आपके बैठने पर स्वर्गदूत आपको देखेंगे, आपको प्रतिष्ठित लोग जानेंगे और उसके लिए आपकी प्रशंसा और सराहना करेंगे। Let's go to John's Gospel, 16th chapter, verse 33. और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसके 33 वचन की ओर हम जाते हैं। It says, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। You have tribulation. आपके जीवन में क्लेश है, You have tears in this world. इस संसार में आपके आंसू है, You have problems in this world. इस संसार में आपके लिए परेशानियां हैं। You have to face discouragement after discouragement in this world. संसार में आपके जीवन में निराशा और निराशा है। As you walk at every juncture, you will have discouragement. और हर एक कदम पे जब आप चलते हैं, वहां पे आपके जीवन में निराशाएं आती है। But what God is, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? God says, in the world you will have tribulation. परमेश्वर कह रहा है संसार में तुम्हें निश्चित ही क्लेश होता है, But you will be of good cheer, परंतु धाड़स बांधो, because I have overcome the world. क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। He has overcome the world and he will give same victory to us. और उसने संसार पर जय पाया है और वो वही जय हम। You will overcome any situation, and the same situation will not be always in your life. हर परिस्थितियों के ऊपर जय पाएंगे और ये जो परिस्थिति है आपके साथ नहीं रहेगी, आपके जीवन में नहीं रहेंगी। Let it roll on, let it move on, and say, Lord, here am I, touch me and use me for your glory. घूमिए, आगे बढ़िए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरा इस्तेमाल तेरे राज्य के लिए और तेरी महिमा के लिए कर। Tell to the Lord, I do not know, I don't understand this difficult situation. Come into me and take control of me and use me, lead me and guide me. प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं इस परिस्थिति में, ये परिस्थिति मेरे नियंत्रण के बाहर है, प्रभु जी तू आ प्रभु जी और मुझे संभाल प्रभु जी और मेरा इस्तेमाल तेरी महिमा के लिए कर। Shall we close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for your talking to each one of us. धन्यवाद हम में से हर एक से बात करने के लिए। As your word has come with authority and authority, may your grace continue to haunt each one of us, O Lord.
ऐसा वचन बड़े अधिकार के साथ हमारे पास आया है प्रभु जी, और उसने प्रभु जी हमारा शिकार किया है। परमेश्वर प्रभु जी हमें झिड़का है, लगातार तेरा वचन हमें लिए चले प्रभु जी। In the name of Jesus, touch everyone and may your grace continue to haunt them, O Father. प्रभु तू हर एक को प्रभु स्पर्श कर और तेरा अनुग्रह प्रभु हर एक के जीवन में उनको मिलने पाए। Touch their families. उनके परिवारों को स्पर्श कीजिए। Touch their neighbors, touch their relatives, touch their friends, and use them mightily as a blessing to their life, O Father. प्रभु उनके पड़ोसियों को, उनके मित्रों को, उनके रिश्तेदारों को छुए, और प्रभु जी इनका इस्तेमाल प्रभु जी उनके उन्नति के लिए करे पिता। May your grace continue to haunt them, use them mightily in the days to come, and throughout this week, let your grace be upon them, O Lord. प्रभु जी तेरा अनुग्रह इस पूरे सप्ताह में उनके ऊपर हो प्रभु जी, और उस अनुग्रह में होकर प्रभु जी वो बड़े पैमाने पर प्रभु जी इस्तेमाल किए जाए। Lord, as a Bible class, we have finished 1 month, and we thank you for your gracious hand. प्रभु जी इस बाइबल क्लास को हमने आज 1 महीने पूरा कर लिया है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के हाथ के। And we pray that you may continue to speak to us in the rest of the 2 months and use us for your glory. प्रभु हम चाहते हैं कि अगले 2 महीने भी आप हमसे लगातार बातचीत करें और अपनी महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल करें। Touch everyone and glorify your name. हर एक को स्पर्श करें प्रभु, और हर एक के द्वारा अपनी महिमा को करें। In Jesus' name we offer. इस प्रार्थना को हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. May God's grace be upon you, and may God's grace continue to use you for His glory. परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। परमेश्वर का अनुग्रह आपको अपनी अद्भुत महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। May His name be glorified throughout this week till we meet next week again. और जब तक हम अगली बार नहीं मिलते, तब तक इस सप्ताह में उसका नाम आपके जीवन में महिमा पाए। Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you very much. Welcome. Thank you, Pastor, for translation also. गुड मॉर्निंग एवरीवन। परमेश्वर के नाम और एक छोटा नोटिफिकेशन आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। ये आज गॉस्पेल ऑफ जॉन की क्लास नहीं होगी, कुछ कारणों के वजह से पास्टर विनोद आज ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो जो क्लास है हम इस हफ्ते फिर से एक बार लेने की कोशिश करेंगे और उसकी सारी नोटिफिकेशन जानकारी आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। तो किस दिन किस वक्त ये क्लास होगी, एक दिन पहले मैं आपको सारी जानकारी ग्रुप पर मैं दे दूंगा, तो हम वो क्लास वहां पे करेंगे। तो आज के लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आज ये क्लास नहीं हो पाएगी कुछ चीजों के कारण, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर के वचनों से आज आपको आशीष मिली है। और ये जो 7 आशीषें आज वचन से सीखे हैं, परमेश्वर हमें अपने जीवन में वो मिलने की कोशिश हमें करने के लिए हमें मदद करे, ये मेरी दुआ है। तो इस वक्त हम आज की क्लास को खत्म कर रहे हैं और फिर से एक बार मैं विनती करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट्स नहीं भेजी है, कृपा करके आप अपने असाइनमेंट्स वक्त पर अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को भेज दीजिए ताकि उनके लिए भी आसानी हो। ठीक है, और फिर से एक बार सबको शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका दिन Thank you. Thank you.